everyone. Good afternoon. I hope you are fine. Now today we are starting with a new unit thermodynamics. Then we will discuss beta already. There is a 4 unit. Then last unit work power energy. Then in between left 2 units. Then later on we will do that unit. Okay. Then today we are starting thermodynamics. Now first, what is thermodynamics? Thermodynamics. Okay, then who discovered about this one? Then William Thomson in 1949 coined the term of the thermodynamics. First one that told about the thermodynamics by the William Thomson. In 1749, then thermodynamics is a macroscopic science. Is the macroscopic science means we are dividing beta science in a two part, microscopic and macroscopic. We discuss already in first net कि हम दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग साइंस को, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक. सो थर्मोडायनेमिक्स जो आती है वो मैक्रोस्कोपिक कैटेगरी के अंदर आती है. So thermodynamics is the physics, is a branch that deals with heat, work and air temperature. In this one, our basic term we will read about air pressure, volume, temperature, heat, work. These are the basic variables which are used in your thermodynamics. जैसे कि हमने मैकेनिक्स के अंदर हमने लास्ट टाइम क्या थी, मैकेनिक्स की थी, उसके अंदर हमारी बेसिक टर्म्स क्या थे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी. दीज आर द बेसिक टर्म्स. Okay, so here will be your basic term, your pressure, volume, temperature, work. These are the basic terms which deals in thermodynamics and their relation to the energy, radiation and your physical property of the matters. कि हम कैसे क्या है heat को work कर सकते हैं, how you can convert in form of the energy, how we can convert in form of the work. Then their study about this heat and process of the heat energy we will read in the thermodynamics. Thermodynamics, beta, this one is a word come from your thermo. Thermo means your heat only and your dynamics means related to the motion. Okay, that is the opposite word here, static. Static and dynamic. Static means body at rest, dynamics means body will be in motion. So flow of the heat, there we will read about this one in the thermodynamics. You can say thermodynamics is the study of the heat and how you can convert this heat in form of the energy. So here we will do on the two things work, then one will be system and second will be your surrounding. Okay, then how there on this one system we will work and this work will be converted into energy from system to surrounding and surrounding to the system. Okay, now next one is your thermodynamics that helps to understand how energy changes into the heat. ये बताती है थर्मोडायनेमिक्स की एनर्जी को कैसे हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हीट को हम एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हियर वी आर टेकिंग एनी बीकर, देन हियर वी आर ब्लोइंग दी फायर. ओके, यहाँ पे क्या है, फायर है. देन एज वी आर टेकिंग दी वाटर इनसाइड दिस बीकर, इसके अंदर क्या ले रखा है बेटा, पानी ले रखा है. सो दिस वन आवर हीट, क्या है ये, हीट है. तो हीट को हम कैसे इससे एनर्जी में चेंज करें, एंड दिस बाय दिस वन हीट देन वर्क इज डन ऑन दिस वन वाटर. ओके, दैट बीकर फिल्ड विद द वाटर. इस बीकर के अंदर क्या बेटा, वाटर है. तो हीट क्या करेगा, जैसे हीट होगी यहाँ पे तो ये वर्क करेगा इसके ऊपर और यहाँ पे क्या मिलेगी, that will be convert into energy. Then volume will be vary, their pressure will be vary as in their heat. Okay, so ये बताता है how energy changes into heat, कैसे एनर्जी को हीट में चेंज कर सकते हैं, कैसे हीट से हम उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. Okay, so thermal energy, what is thermal energy? That we will call the energy that comes from the heat. Thermal means that temperature. Okay, that energy which is come out from the your heat only. Now different form of the energy already we discussed in your last unit, work power energy. की एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म होती है, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी. ओके, here also we will do one form of the energy, that is thermal energy, due to the heating effect of the particles, molecules which are present in our system and the surrounding. Okay, so when that tiny particle, small particle inside something start moving,
जो ये स्मॉल पार्टिकल से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर, वी विल डिस्कस लेटर ऑन व्हाट इज सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, देन दे प्रोड्यूस द हीट। जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स क्या है मूव करेंगे, इधर उधर स्ट्राइक करेंगे, तो क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल वी आर रबिंग आवर हैंड्स, देन व्हाट हैपन, we will feel some hot, yes or no? So here also that particle will be move here and there, then heating effect will be produced between them, then the faster these particle move, then more the heat they produce। ये पार्टिकल क्या है, ज्यादा तेजी से मूव करेंगे तो उतनी ज्यादा क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दी थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या है, एक बेसिक आइडिया थर्मोडायनेमिक्स में, कैसे हीट को क्या है, फ्लो ऑफ द मॉलिक्यूल we are converting into heat, and by taking this heat then it will be converted into the energy। okay, so thermodynamics से हम सिर्फ क्या करते हैं, रीड करते हैं related to the heat, कि heat की वजह से क्या क्या variables that will be work there। for example your pressure will be change of that water if you are taking any beaker। इस beaker के अंदर हमने पानी ले रखा है, तो heat जैसे ही हम blow कर रहे हैं तो उसके pressure में change आएगा, volume vary करेगा, volume can be expand, can be compressed there। okay, so about this one depend upon the work done, कि हम इस पे work कर रहे हैं, then work by this one। your two type of the work will be there during the expansion, during the compression। so basic term we will read here। there next year thermodynamics variables, thermodynamics variables which are varying in our thermodynamics। ठीक है, अगर हम मैकेनिक्स से अगर कंपेयर करें तो बेटा मैकेनिक्स के अंदर क्या होता था, मैकेनिक्स हमने रीड की, 4 यूनिट हम मैकेनिक्स की कंप्लीट की, तो मैकेनिक्स के अंदर क्या था कि दैट एनी बॉडी इज मूविंग वन टू अनदर पोजीशन। मैकेनिक्स होता है दैट स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग मोशन। ओके, कि बॉडी क्या है, एक पार्टी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही थी, तो यहाँ पे क्या था, ड्यूरिंग दिस वन बेसिक वेरिएबल्स हमारे क्या थे जो चेंज होते जा रहे थे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, दीज आर द बेसिक वेरिएबल्स व्हिच वी आर यूजिंग इन आवर मैकेनिक्स। ओके, तो मैकेनिक्स के बाद बेटा हम थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, सिर्फ चीजें वही रहेगी, वही आपकी वैसे एनर्जी भी लगेगी, there will be some force applied between them, but during this one time beta variables will be changed। now this time your variable will be there, pressure, volume, temperature, heat, these are the basic variables which are acting in our thermodynamics। okay, P that is pressure, V volume, temperature। clear, these are the basic variables which we will use in our thermodynamics। तो जैसे ही क्या है, हीट अगर प्रोड्यूस करे तो प्रेशर में वेरिएशन आएगा, वॉल्यूम कैन बी एक्सपैंड, कैन बी कंप्रेस, कैन बी एक्सपैंड, can be a compression will be there। okay, two type of the process will be there between your P and V। okay, on behalf of this one beta we will make their diagram also, PV diagram for your different type of the processes which are acting in our thermodynamics। and temperature, as we are changing their temperature, then what is the change in our system and surrounding, how it take place। so equation of the state beta, as we are taking these variables, then merging these or variables with each other, then we will write a one equation, that equation we are calling it equation of the state। okay, जिस तरह से मैकेनिक्स में हम क्या कर रहे थे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, वी डिस्कस डिफरेंट वेरिएबल, तो सबको मर्ज करने के लिए हमें क्या बना, एक रिलेशन होना चाहिए, दैट्स व्हाई वी कैन फाइंड ईच टर्म्स। okay, so these relation we can find by using your some equation that we will calling their equation of motion, जिनको हमने नेम दिया equation of motion। three equation of motion we have done already in mechanics, v equal to u plus at, s equal to ut plus half at square, v square minus u square equal to 2as। तो इस तरीके से हमने क्या की, डिफरेंट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने मैकेनिक्स के अंदर की थी, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर, मर्जिंग ऑल बेसिक्स वेरिएबल्स इन आवर मैकेनिक्स। सेम हियर बेटा, यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वो हमारे क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तो इनको क्या है मर्ज करने के लिए हमें क्या नीड पड़ेगी, एक रिलेशन बनाना पड़ेगा, दैट्स व्हाई दिस वन रिलेशन बिटवीन देम वी आर कॉलिंग इट इक्वेशन ऑफ स्टेट, एंड दैट इक्वेशन इज इक्वल टू योर पीवी इक्वल टू एनआरटी, दैट इज टेलिंग अबाउट देयर रिलेशन बिटवीन देम। okay, P is your pressure, V is volume। okay, both are inversely proportional with each other। P pressure increase करेगा, then volume will be decreased there at constant temperature, constant temperature के ऊपर। okay, volume will be increased, then pressure will be
decrease. So n is a number of the moles, then r is your constant, then T will be your temperature. With the temperature, then both will be directly proportional. Pressure volume will increase with increase or temperature. तो ये आपकी इक्वेशन है बेटा, जो इन तीनों के अंदर, इन वेरिएबल्स के अंदर रिलेशन बताती है. दैट इक्वेशन वी आर कॉलिंग इट आइडियल गैस इक्वेशन. इस गैस इक्वेशन को क्या कहा गया है? Ideal gas equation. Okay, actually this one gas equation is not present. Ideal gas actually present नहीं होती. This one our only imaginary things that is having ideal. Okay, its nature is ideal. No one is ideal in our nature. That's why this also not present in our nature. This one is imaginary gas only. So this one called, we will call it ideal gas equation. So I hope understood what is thermodynamics. Thermodynamics we discussed already, that is a study of the heat and how we can convert this heat in form of the energy, and energy too we are converting into heat. Now next we will discuss beta system and surrounding. That process is going on during their system and surrounding. System से surrounding में convert होती है, surrounding से हम system में convert करते हैं. Clear? So we will discuss what is system and their surrounding. First your system. Thermodynamic system is the specific portion of the matter with a definite boundary on which our अटेंशन इज फोकस. जिसके ऊपर क्या कर रहे हैं हम, वर्क कर रहे हैं, दैट इज आवर सिस्टम ओनली. क्या होता है सिस्टम? जिसके अंदर हम वर्क करते हैं, ओके, दैट इंटरेक्शन करते हैं, उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? सिस्टम बोलते हैं. थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज अ स्पेसिफिक पोर्शन. फॉर एग्जांपल दिस वन आवर कंटेनर, इन दिस वन वाटर वी आर फिलिंग. ओके, here we are using their heating effect कि हमने क्या कर दिया, फायर यूज कर रहे हैं. then on this one beta as we are using fire, then this one will be heat work on this beaker. किसके ऊपर भी वर्क कर रही है? इस बीकर के ऊपर वर्क कर रही है. तो हमारे अंदर किसके ऊपर वर्क हुआ? दैट विल बी अ सिस्टम. ये क्या रहा आपका? सिस्टम. और इसके बाहर का जो भी पोर्शन रहा, दैट वी विल कॉल इट सराउंडिंग. ओके, तो ये कह रहा है कि डेफिनेट बाउंड्री ऑन विच आवर अटेंशन इज फोकस. जिसपे हम काम कर रहे हैं, उस बाउंड्री के बीच में जो भी आपका मेटेरियल होगा, दैट वी विल कॉल इट सिस्टम. नाउ देयर आर द थ्री टाइप ऑफ द सिस्टम. हम थ्री टाइप के सिस्टम यूज करते हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम. Okay, so open system when we will call it this one, first one isolated system. Isolated system बेटा वो सिस्टम होता है जिसके अंदर गैस का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता. We can say heat is not exchanged as well as the mass is not exchanging from each other. You can say that is a flask, bottle. ओके, जो गर्म पानी वाली बोतल होती है उसके अंदर हम यूज करते हैं बेटा, गर्म पानी अगर डाल दिया, इट विल रिमेन एज इट इज. ओके, आफ्टर सम टाइम यू विल चेक, तो गर्म का गर्म ही रहता है. तो मतलब क्या हुआ, उसके अंदर हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ, ना तो बाहर से अंदर गई, ना अंदर से बाहर आई हीट. ओके, ना ही मास का एक्सचेंज हुआ. जब तक हम वाटर को यूज ही नहीं करेंगे, देन मास विल रिमेन सेम ओनली. तो कंडीशन जिसके अंदर क्या होता है कि एनर्जी का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता, हीट कोई भी एक्सचेंज नहीं होती, एंड मास ऑल्सो विद इट्स सराउंडिंग. इस सराउंडिंग के साथ ना तो मास का एक्सचेंज होता है, ना हीट का एक्सचेंज होता है. दैट वन योर सिस्टम इज नोन एज द आइसोलेटेड सिस्टम. ओके, तो यूनिवर्स क्या कहता है कि यूनिवर्स इज कंसिडर एज अ आइसोलेटेड सिस्टम. कि यूनिवर्स बाहर नहीं जा सकते, बाहर से कुछ यूनिवर्स, क्योंकि कंप्लीट ही क्या है, एक यूनिवर्स है. तो यूनिवर्स के अंदर तो सब कुछ चलता रहता है, बट यूनिवर्स से बाहर कुछ नहीं होगा. सो कंप्लीट यूनिवर्स को क्या कहा गया? आइसोलेटेड सिस्टम है. इफ दैट इज बाउंड्री इन विच वी कांट एक्सचेंज द मास आउटसाइड ऑफ दिस यूनिवर्स. क्लोज सिस्टम. ओके, क्लोज सिस्टम क्या कहता है कि क्लोज सिस्टम विल बी देयर इन विच मास कांट बी ट्रांसफर बट हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम each other, system to surrounding, surrounding to the system. इसके अंदर क्या कहता है कि एनर्जी का ट्रांसफर तो हो सकता है, बट मास का ट्रांसफर नहीं हो सकता. कि फॉर एग्जांपल हमने इस बीकर के अंदर क्या किया था, गर्म पानी रखा हुआ था बेटा. तो गर्म पानी के अंदर क्या था, आफ्टर सम टाइम वी विल यूज दिस वन बीकर, देन ड्यूरिंग द हीटिंग इफेक्ट दैट वाटर बिकम हॉट. क्या होगा? वाटर गर्म हो गया. तो जैसे जैसे हीट को हम क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, तो क्या होगा, पानी थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा. ओके, दैट मास इज रिमेन एज इट इज, वी आर नॉट यूजिंग दैट वाटर. बट जैसे ही हमने कुछ टाइम बाद चेक किया, तो वाटर विल बी बिकम कोल्ड एज कंपेयर टू दी हॉट. ओके, तो एनर्जी का ट्रांसफर तो हुआ इधर से इधर, बिकॉज दिस वन यूर ओपन.
ओके, ऊपर से क्या था ओपन, तो एनर्जी का ट्रांसफर तो हो गया बिकॉज आउटसाइड ऑफ द सिस्टम इज योर कोल्ड, ओके, इनसाइड दिस वन सिस्टम इज योर हॉट। तो अंदर से बाहर की तरफ एक्सचेंज चलता रहा जब तक क्या ना हुआ, टेम्परेचर इक्वल ना हुआ, और टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, दैट कंडीशन इज नोन एज द थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, तो इसके अंदर क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ एनर्जी का, बट मास का एक्सचेंज नहीं हुआ, तो इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम। I hope you understood beta two type of the system, isolated and your next closed system. Next one beta open system. ओपन सिस्टम ये होता है कि मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो सकते हैं, दैट इज नोन एज योर ओपन सिस्टम। ओके, जिसके अंदर मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी, ओके, ह्यूमन बॉडी होती है जिसके अंदर मास का भी ट्रांसफर हो सकता है, हमारा वेट कम ज्यादा हो सकता है, एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकती है, ठंडे गर्म हो सकते हैं। ओके, दैट इज टाइप ऑफ द सिस्टम इज नोन एज द open system. Okay, so three type of the system in short we can say beta, that is your isolated system, open system and your closed system. So here mass flow, isolated में कोई mass flow नहीं होता, open system mass flow can be take place, and in closed system that is nothing mass will be flow there. work कोई भी काम नहीं होता isolated system में, on this one we can do work, on this one we can do work. क्लियर कि अगर ये आपका बीकर है, इसको हम क्लोज कर देंगे बेटा, इस पे वर्क कर सकते हैं, हम इसको गर्म कर सकते हैं, क्लियर, तो इस पे वर्क हम कर सकते हैं ओपन सिस्टम में, और क्लोज सिस्टम में भी हम वर्क कर सकते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम में हम क्या, क्लोज है, एयर टाइट है, कि आपकी हीट पास ही नहीं हो सकती इसके अंदर, कि अगर हमने कोई ऐसा कंटेनर यूज कर रखा फ्लास्क बोतल कि आपकी those time there. Now heat in isolated, हीट कांट भी पास देयर, हीट ही पास नहीं होगी तो हमें वर्क ही नहीं होगा। सो ओपन एंड क्लोज सिस्टम में क्या हो सकता है, हीट पास हो सकती है, वी कैन डू देयर हीटिंग इफेक्ट एंड देयर कूलिंग इफेक्ट विल बी देयर। सो इन बोथ आई ओपन एंड क्लोज सिस्टम हीट कैन बी पास ऑफ both state. Clear? So this is the difference beta between your type of the systems, three type I told, isolated, closed system and your open system. I hope you understood on behalf of the heat and mass how we can divide all three type of the system of the thermodynamics. Okay, now next beta surrounding, कि सिस्टम और सराउंडिंग, अभी मैंने बताया कि हम जिस पे वर्क कर रहे हैं अंडर ऑब्जर्वेशन वी आर कीपिंग देयर, दैट इज सिस्टम, और ऑब्जर्वेशन से जो बाहर होगा दैट वी विल कॉल इट surrounding. Okay, so everything outside the system that has a direct influence on the behavior of the system is known as the surrounding. अभी मैंने बताया कि इसके ऊपर क्या कर रहे थे, हम वर्क कर रहे थे, हमने बीकर लिया था, देयर वी आर क्रिएट देयर हीटिंग इफेक्ट, यहाँ से क्या दी, फायर हम यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या है, दिस वन आवर सिस्टम, जिसको हम अंडर ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं, कि हम ये चेक कर रहे हैं कि इस हीट की वजह से कितना गर्म हुआ, कितना ठंडा हुआ है, तो अंडर ऑब्जर्वेशन ये वाला पार्ट क्या रहेगा आपका सिस्टम, और बाकी का जो इधर वाला पार्ट है दैट इज योर सराउंडिंग ओनली। ओके, तो हम दो चीजों पे वर्क करेंगे, सिस्टम और सराउंडिंग। Okay, so has a direct influence on basic of the behavior of the system is known as the surrounding. When the temperature is same throughout the entire system, then we will call it thermal equilibrium. Thermal equilibrium कब रहेगा बेटा, यहाँ पे जैसे फायर की वजह से क्या हो गया, ये गर्म हो गया, गर्म हो गया, तो गर्म होने के बाद बाहर का टेम्परेचर कैसा रहा, सराउंडिंग का टेम्परेचर कैसा रहा, ठंडा रहा, दिस वन बिकम्स हियर हॉट एंड हियर विल बी कोल्ड। तो कुछ टाइम के बाद क्या हमने इसको जीरो कर दिया, तो यहाँ ओपन रखा हुआ है, तो यहाँ से क्या चलती रहेगी, हीट एक्सचेंज होती रहेगी। ओके, टेम्परेचर एक्सचेंज होता रहेगा, सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग टू सिस्टम। तो ये हीट कब तक एक्सचेंज होती रहेगी, जब तक क्या है, दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, एक जैसा ना हो जाए। ओके, और गर्म से ठंडे की तरफ जो हमारी हीट एक्सचेंज होती है वो हमेशा कहाँ चलती है, हॉट टू कोल्ड। ओके, दैट इज नोन एज द सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो यहाँ गर्म से क्या होगा, ठंडे की तरफ एक्सचेंज होगी, और तब तक एक्सचेंज होती रहेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर, अगर यहाँ पे टेम्परेचर T है तो ये भी टेम्परेचर T ना हो जाए, तब तक क्या है, हीट ट्रांसफर होती रहती है। ओके, तो जैसे ही दोनों का टेम्परेचर सेम आ जाएगा, तो इस कंडीशन पे
is our system is in thermal equilibrium. When the temperature is same throughout the entire system, complete system का क्या होगा, सेम टेम्परेचर होगा, दैट वी विल कॉल इट थर्मल इक्विलिब्रियम. ओके, या इधर कह सकते हो बेटे यहां से गर्म कर रहे हो तो यहाँ का पहले नीचे वाला गर्म होता है फिर ऊपर वाला गर्म होता है, तो जब तक कंप्लीट टेम्परेचर सेम ना हो जाए देन इट विल बी अ थर्मल इक्विलिब्रियम. ओके, जैसे सेम टेम्परेचर हो जाएगा तो इसको बोल देंगे थर्मल इक्विलिब्रियम. सो नेक्स्ट वन, योर थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी. अब हम हर एक क्वांटिटी को बेटा से हम प्रॉपर्टी डिवाइड करते हैं, दैट इज इंटेंसिव और एक्सटेंसिव. जिस तरीके से हमने मैकेनिक्स में हर एक जो आपकी क्वांटिटी थी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, सभी क्वांटिटीज को हमने दो में डिवाइड कर रखा था, सम स्केलर क्वांटिटी, सम आर वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, एक थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टीज होती है बेटा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. तो इसी तरीके से क्वांटिटीज को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, दैट विल बी इंटेंसिव एंड सम आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. कुछ इंटेंसिव प्रॉपर्टी रखते हैं, कुछ एक्सटेंसिव. सो वी विल रीड इन डिटेल. थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी आर डिफाइंड एज द कैरेक्टर ऑफ द सिस्टम. जो हम सिस्टम लेके चल रहे हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक्सप्लेन करता है. कैपेबिलिटी ऑफ द स्पेसिफाइंग द सिस्टम स्टेट एंड द थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी मे बी एक्सटेंसिव और मे बी इंटेंसिव. ये प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, ऑन द बिहाफ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस क्वांटिटी वी आर डिवाइडिंग इनटू, दैट कैन बी एक्सटेंसिव, कैन बी इंटेंसिव. तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर. ओके, कि मास पे डिपेंड, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, आपका क्या है, मास पे डिपेंड नहीं करती, डिपेंड अपॉन द इंटरनल प्रॉपर्टीज. ओके, हीट पे डिपेंड कर रही है, हीटिंग इफेक्ट, कितना ठंडा गर्म हुआ, मास पे डिपेंड नहीं करी, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करी, कितना आपका मास कम ज्यादा हो रहा है. इंटरनल प्रॉपर्टी पे जो डिफाइन करती, दैट क्वांटिटी वी विल कॉल इट इंटेंसिव प्रॉपर्टी. pressure, temperature, these are the intensive property. Okay, so you can say property does not depend upon the quantity, does not depend upon the mass. mass volume पे depend नहीं करती, that we will call it intensive property. intensive बेटा अंदर की जो प्रॉपर्टी होगी, अंदर की जो प्रॉपर्टी है कि आप टच करो ठंडा लगेगा, टच करो गर्म लगेगा, तो उसकी क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी है उस मैटर की. ओके, तो इन टर्म के अंदर आते हैं प्रेशर, टेम्परेचर, दी ज्यादा इंटेंसिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट ईयर एक्सटेंसिव, जो आपके डिपेंड करेंगे मास पे, क्वांटिटी पे डिपेंड करेंगे सिस्टम के. ओके, कि मास का है, क्या है, कम है, ज्यादा है, तो उन क्वांटिटीज के मास पे ज्यादा वेरी कर रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव. बाहर की जो हम बाहर से देख सकते हैं, जिन प्रॉपर्टी को हम बाहर से देख के ये कह सकते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा, ये कम है, ये ज्यादा है. ओके, सो दैट प्रॉपर्टी वी विल कॉल इट extensive property. And here we can write these example: volume, energy, enthalpy. These are the extensive property of the thermodynamics. Okay, now next year thermodynamics process, there are the four type of the thermodynamics process. अभी हमने क्या किया था कि हमने variables read किए थे, pressure, volume, temperature and heat. These are the different variables which we are using our thermodynamics. तो इन पे प्रोसेस कैसे होती है कि सिस्टम पे वर्क कैसे कर रहे हैं, एज वी आर चेंजिंग दीज आर द वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, देन अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ दीज वेरिएबल्स देन वी आर डिवाइडिंग दीज थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस इन योर फोर टाइप्स. First one, adiabatic process. Okay, adiabatic process, that process in which not exchange any of heat, जिसके अंदर हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता, into and out of the system occur. क्लियर, हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता, दैट वी विल कॉल इट adiabatic प्रोसेस. हीट चेंज इन हीट वी कैन से देयर इट विल बी अ जीरो. क्लियर, फॉर एग्जांपल एनी बीकर वी आर टेकिंग देयर एंड दिस वन बीकर वी आर टेकिंग देयर adiabatic बोल, इसके चारों तरफ कैसी बोल यूज की है, adiabatic. तो अगर इसके अंदर अगर आपका गर्म पानी है तो पानी कैसा रहेगा, गर्म ही रहेगा, क्योंकि हमने चारों तरफ कैसी बोल यूज की है, adiabatic बोल. ओके, adiabatic बोल का मीनिंग क्या होता है, नो ट्रांसफर ऑफ द हीट, ना तो ठंडा बाहर की तरफ जाएगा ना बाहर से कुछ अंदर आएगा. सो इट विल बी रिमेन सेम टेम्परेचर. अगर 40 डिग्री टेम्परेचर है तो इसका 40 डिग्री टेम्परेचर ही रहेगा, नाइदर विल बी कम आउट एंड कम इनसाइड. नेक्स्ट हियर आइसोकोरिक प्रोसेस, बेटा देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम, जिसके अंदर वॉल्यूम में कोई वेरिएशन ना हो, वॉल्यूम में चेंज ना आए, दैट वी विल कॉल इट
योर आइसोथर्मल प्रोसेस, चेंज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू जीरो। जितना वॉल्यूम हम कंटेनर के अंदर डाल रहे हैं, जिसपे वर्क करने के बाद अगर इसका वॉल्यूम अगर वी ही रहता है, देन वी विल कॉल इट आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, ये ध्यान रखना बेटा, इसके अंदर वर्क डन हमेशा क्या आएगा, जीरो। दिस वन वी विल डू इन डिटेल व्हाई इट इज कमिंग इक्वल टू जीरो। आइसोकोरिक के अंदर वर्क डन क्यों जीरो रहता है, क्योंकि डिपेंड अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम ही नहीं होता इसके अंदर, चेंज इन वॉल्यूम क्या रहता है इसके अंदर, जीरो रहता है। ओके, दैट्स व्हाई वर्क डन ऑलवेज विल बी जीरो। तो वर्क डन हम डिटेल में करेंगे, क्या वर्क डन क्यों इसलिए जीरो होता है। आइसोबारिक इन देयर नो चेंज इन द प्रेशर, आइसोबारिक के अंदर क्या होता है, प्रेशर विल बी रिमेन कांस्टेंट, नथिंग चेंज इन द प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता एज वी आर चेंजिंग देयर। Then isothermal process, your isothermal process there is a no change in the temperature, जिसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता, टेम्परेचर will be remain constant, we can see change in temperature will be zero, you can say temperature is constant, then we will call it work done, sorry isothermal process, टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो ये फोर टाइप की प्रोसेस होती है बेटा, डिपेंड्स ऑन द फोर टाइप्स ऑफ द वेरिएबल। अगर हम हीट को कांस्टेंट रखते हैं देन आइडियाबैटिक प्रोसेस, अगर हम वॉल्यूम को, दिस वन वर्क डन विल बी देयर ड्यूरिंग दिस वन, ओके दैट वी विल फाइंड दिस वर्क डन। देन आइसोकोरिक प्रोसेस, इसके अंदर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, दैट वी विल कॉल इट योर चेंज इन वॉल्यूम जीरो, ओके वर्क डन भी जीरो आएगा। आइसोबारिक आई टोल्ड यू बेटा देयर इज नो चेंज इन द प्रेशर, प्रेशर में चेंज नहीं आएगा, दैट वी विल कॉल इट आइसोबारिक प्रोसेस। जो भी प्रोसेस होती है जिसके अंदर अगर वॉल्यूम में चेंज ना आए, आइसोबारिक। ओके, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल नो चेंज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज ही नहीं आ रहा, इट विल बी रिमेन सेम ओनली, दैट वी विल कॉल इट आइसोथर्मल टेम्परेचर। ओके, these are the different type of the processes. Now next your zeroth law of the thermodynamics. Okay, zeroth law beta, this one discovered after the first law of the thermodynamics, later on the first thermodynamics, then but its name is zeroth law. Okay, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, zeroth law दिया गया, कि फर्स्ट के बाद ये डिस्कवर हुआ थे। तो ये लो क्या कहता है, that is telling about the thermal equilibrium. ओके, ये एक्सप्लेन करता है थर्मल इक्विलिब्रियम को। अगर हम थ्री सिस्टम लेके चल रहे हैं, दैट इज इक्वल टू योर थ्री सिस्टम ए बी एंड सी, क्लियर। तो ये लोग क्या कहता है, एस्टेब्लिश द कंसेप्ट ऑफ द थर्मल इक्विलिब्रियम, किसके कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, थर्मल इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। दिस वन वॉल इज योर आइसोथर्मल वॉल एंड दिस वन योर आइडियाबैटिक वॉल, आइडियाबैटिक वॉल। ओके, अभी मैंने बताया आइडियाबैटिक वॉल कैसी होती है, नाइदर चेंज ऑफ द हीट, ओके हीट का कोई एक्सचेंज ना होना, ना अंदर से बाहर आना ना बाहर से अंदर जाना। तो ये कैसी वॉल हमने यूज की है आपने, आइडियाबैटिक। तो यहाँ से हीट का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा, फ्रॉम हियर टू देयर वी कैन ट्रांसफर हीट, फ्रॉम हियर टू देयर वी कैन ट्रांसफर ऑफ द हीट। तो ये कहता है इट स्टेट दैट इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम with the third system then they are the thermal equilibrium with the each other। अगर दो सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम है तो थर्ड के साथ भी क्या रहेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम ही रहेंगे। ओके, ये कहता है कि if A is your thermal equilibrium, A is thermal equilibrium, thermal equilibrium with B, कि A क्या है, B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, that is we can write there A is thermal equilibrium with B, okay, and this one B is thermal equilibrium with C, B is thermal equilibrium with C, ओके कि ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, वी कैन राइट देयर बी इज थर्मल इक्विलिब्रियम विद योर सी। ओके, देन ये क्या कहता है, देन ए और सी आपस में भी क्या हो गए, देन ए एंड सी
also will be thermal equilibrium with each other. अंडरस्टूड कि हमने तीन सिस्टम लिए हैं, तीन में क्या है, इसका टेम्परेचर क्या है, लेट वी आर टेकिंग T1 हियर, T2 हियर, T3, कि ये कहते हैं कि अगर T1 T2 थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाते हैं तो T3 किस लिए हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हीट का एक्सचेंज हो रहा है। दिस वन आइडियाबैटिक वोल, यहाँ से यहाँ तक कोई एक्सचेंज नहीं होगा बेटा, बट यहाँ से यहाँ तक एक्सचेंज हो सकता है, दिस आर द आइसोथर्मल वोल। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक हीट का एक्सचेंज होता रहेगा, कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। ओके, फिर यहाँ से यहाँ तक का भी एक्सचेंज होता रहेगा, कब तक होता रहेगा, जब तक क्या है, दोनों का हीट एक्सचेंज ना हो जाए। ओके, तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, जैसे ये दोनों का टेम्परेचर इक्वल होगा, इन दोनों का हो जाएगा, ये क्या कहता है, जीरो फ्लो, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएंगे। ओके, इफ ए बी थर्मल इक्विलिब्रियम, बी एंड सी थर्मल इक्विलिब्रियम, देन दैट इज A and C also becomes your thermal equilibrium with the your each other. Okay, so this one your zeroth law, that is explaining about the thermal equilibrium of the system, कि system कैसे हो सकते हैं, thermal equilibrium कैसे हो सकते हैं। Okay, I hope beta you understood this topic properly. If you are having any problem, then you can comment your answer, comment. Then thank you for watching today our class.